Hello everyone, students and my friends. I am here available with solutions of Tier 1 English section questions held on 17 July, Shift 4. So let's start. The first question is on one word substitution. A person who compiles a dictionary. Such a person is known as lexicographer. Lexicographer. So your option number 1 is the correct one. Iconoclast आप जानते हैं iconoclast का मीनिंग होता है a person who criticizes the old customs or the traditional customs. Bibliophile is a person who loves books. Plagiarist is a person who uses others' ideas and pretends as if they were his own. ऐसा लोग जो दूसरों के आइडियाओं का यूज करते हैं, दूसरे के आइडियाज यूज करते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं मानो ये उनका अपना हो, ऐसे लोगों को हम प्लेगरिस्ट बोलते हैं. बिब्लियोफाइल बुक्स के लवर को बोलते हैं. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. टू प्राइम द पम्प. टू प्राइम द पम्प is an idiom. Its meaning is encourage the growth or action of something. To prime the pump means to encourage the growth or action of something. वर्ड से भी ये क्लियर है. पंप को प्राइम किया जाता है टू मेक इट फंक्शनेबल, टू मेक इट फंक्शन, टू मेक इट फंक्शन. अ पंप इज प्राइम्ड. तो सेम इज द केस हियर. Its meaning is encourage and growth. To encourage a person so that he can grow in his life. Other all are wrong. So your answer is 2 here. Option number 2 is the correct one. To use a pump efficiently, this is wrong. This is also wrong. And this one is the correct one. Now question 3. Select the option that expresses the given sentence in passive voice. The audience loved her performance. The sentence is in active voice, past simple tense. So first of all we will select the object which will become subject in passive voice. Her performance. Now as per this was and were will be used. Her performance, then was loved by the audience. Her performance was loved by the audience. This is the passive voice of the given sentence. So now we will go to fourth question. Select the option that expresses the given sentence in past tense. The declarations which come out, ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल है. इस सेंटेंस में दो पार्ट है. एक तो मेन वर्ब यहाँ है और एक ड्यूली वर्ब यहाँ है. इन दोनों को हमें पास्ट में करना है. तो ये देखिए किस सेंटेंस में है. द डिक्लेरेशंस विच केम आउट फ्रॉम दैट ऑफिस वर नॉट डिपेंडेबल. तो ये सही है. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. अगर आप ऑप्शन 3 को देखते हैं तो यहाँ आर का प्रयोग किया गया है, ये गलत है. इसलिए ऑप्शन 3 गलत है. 2 इज ऑल्सो रॉन्ग, 1 इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. नाउ शी इज लाफिंग एट मी. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. हमें पैसिव वॉइस में करना है. बिंग का प्रयोग किया जाता है. मी विल बी चेंज इनटू आई एम बिंग लाफ्ड एट बाय. So this is the passive voice of the given sentence. Being का प्रयोग करना है. Was का कुछ प्रयोग नहीं करना है. Have been वगैरह कुछ नहीं होगा. Had been कुछ नहीं होगा. I am being laughed at by her is the correct answer. Now select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. A detailed description of a series of real or fictional events taking place over a long period of time. Such a series of real fictional events is called saga. A long story which describes the old events is known as saga. तो यहाँ saga करेक्ट है. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन. जर्नल तो मैगजीन होता है. विटनेस आप जानते ही हैं क्या है. केस स्टडी ऑल्सो इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड. सो saga इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस. नाउ द 7th क्वेश्चन. द burglar was cautious and question is that read the given sentence, select the most appropriate synonym of the word vigilant. vigilant के लिए आपको एक synonym यूज करना है. synonym select करना है vigilant के लिए. vigilant का मतलब है सचेत रहना, cautious रहना.
तो ये वर्ड क्या है? द बर्गलर वॉज वेरी कॉशस, तो ये विजिलेंट का सिनोनिम हो गया कॉशस। अब देखते हैं ये कॉशस कहाँ पे है। कॉशस यहाँ है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, द सेंटेंस गिवन बिलो हैज वन मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड, मिसस्पेल्ड वर्ड कहाँ है? लास्ट बेंच स्टूडेंट्स आर मिस्टीरियस बाय नेचर। मिस्टीरियस ये स्पेलिंग इसका मिसस्पेल्ड है, उसको हमको क्या करना है कि सिलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग हमें सिलेक्ट करना है। MYS मिस्टीरियस, IOUS होता है मिस्टीरियस, MYSTERIOUS, ये करेक्ट स्पेलिंग। मिस्टीरियस TERI होता है, अगर आप आई लिखा रहता तो सही हो जाता। मिस्टीरियस, बाकी सारे रॉन्ग है, बाकी कोई भी सही नहीं होगा, एक ही सही होना है। Now we will switch over to question number 9. His house was filthy. Filthy means क्या होता है? डर्टी। तो इसके लिए हमें इसका क्या लिखना है? सिनोनिम तो हो गया इसका डर्टी, लेकिन हमें लिखना है एंटोनिम। ये भी ध्यान रखना है कि कहीं हम एंटोनिम के बदले सिनोनिम नहीं लिखें। तो फिल्दी का एंटोनिम हो गया क्लीन। फिल्दी का एंटोनिम हो गया क्लीन। फिल्दी मीन्स डर्टी। फिल्दी का मीनिंग होता है, फिल्दी का मीनिंग होता है डर्टी, और इसका एंटोनिम हो गया क्लीन। नाउ सोनाली is bubbly and carefree in comparison to her sister Mitali's subdued nature. दबाया है, subdued means subdued nature, जो who is not carefree, who works under some pressure. Such a person is known as, the nature of such a person is known as subdued nature. But here Sonali is bubbly. Bubbly means क्या होता है? carefree, carefree। तो यहाँ हमारा हो गया, और हमें को क्या करना है? चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इफरवेसेंट। इफरवेसेंट, इफरवेसेंट का हमें मीनिंग सिलेक्ट करना है। तो इफरवेसेंट का मीनिंग हो गया क्या? बबली। इफरवेसेंट का एंटोनिम हमें यूज करना है ना। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इफरवेसेंट। इफरवेसेंट, तो इफरवेसेंट का ये तो हो गया सिनोनिम हो गया, ये हो गया सिनोनिम। सिनोनिम ये भी हो गया, ये भी हो जाएगा सिनोनिम। सिनोनिम। अब इसका करेक्ट मीनिंग हो गया सबड्यूड, इसका एंटोनिम हो गया सबड्यूड। इफरवेसेंट का सब ओपोजिट हो गया सबड्यूड। तो यही है, जल्दी नहीं करना है आपको। अगर नहीं भी मीनिंग मालूम हो तो आप देखिए, केयर फ्री और बबली दोनों का मीनिंग एक है, तो दो ऑप्शन तो होगा नहीं। अच्छा, कंपेरिजन का कोई यहाँ मतलब नहीं लगता है, मीनिंग न भी मालूम हो तो हम इसको सबड्यूड से ऑप्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका है। अगर कुछ भी मालूम नहीं हो तो ऐसे गेस किया जाता है। अगर आपको कुछ लगे कि हमारा आंसर अप टू 90% सही हो सकता है तो यू कैन गो फॉर दैट। तो हमें यहाँ एंटोनिम इफरवेसेंट, इफरवेसेंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन फुल विथ एक्साइटमेंट, ए पर्सन, इंथुजियास्टिक पर्सन। इफरवेसेंट, इंथुजियास्टिक पर्सन, enthusiastic person, enthusiastic, full of energy and zeal, such a person is known as enthusiastic। तो enthusiastic का हमें एंटोनिम हो गया subdued। Now select the most appropriate antonym of the underlined word, he was uncomfortable। इसका भी एंटोनिम हमें यूज करना है, uncomfortable का। uncomfortable का एंटोनिम, एंटोनिम यूज करना है, तो uncomfortable तो हो गया हमारा, इसका एंटोनिम हो गया ईजफुल। अनकंफर्टेबल था, कंफर्टेबल नहीं था, अनकंफर्टेबल था, तो हमारा इसका एंटोनिम हो गया ईजफुल। ईजफुल इज द करेक्ट वन। एंटोनिम ऑफ अनकंफर्टेबल इज ईजफुल, बाकी सब नहीं है। अनकंफर्टेबल का सिनोनिम हो गया ट्रबलसम। ये सब आप देख लेंगे कि नहीं भी आपको पता हो तो ट्रबलसम, डिफिकल्ट, ये सब सिनोनिम हो गए। तो ये नहीं है, तो ऐसे भी हम इसको एलिमिनेट करते हैं। दिस इज द वे ऑफ एलिमिनेटिंग। अगर दो एक ही
मीनिंग दे रहे हैं तो उनको एलिमिनेट करना है। योर आंसर विल बी हियर 2। Select the incorrectly spelled word. Laughable, reasonable, blessed and profane. अब देखिए लाफेबल का स्पेलिंग सही है, रीजनेबल भी सही है, ब्लेस्ड भी सही है, प्रोफेन का स्पेलिंग गलत है। हमारा आंसर 4 होगा और इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? इसका सही स्पेलिंग होगा प्रोफेन, FA नहीं होता है, प्रोफेन। और इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है इम्प्योर, इररिलीजियस, नॉट रिलेटेड विथ रिलीजन, माने अशुद्ध, अशुद्ध जो हम बोलते हैं वो इसका मीनिंग होता है इम्प्योर। प्रोफेन, प्रोफेन का एंटोनिम क्या होगा? प्योर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इट्स अ ओल्ड यूनिफॉर्म, तो ये गलत है, एन ओल्ड होना चाहिए, ये गलत हो गया। बट अ मेमोरेबल थिंग, देन इट इज ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी, इट इज द ओल्ड यूनिफॉर्म बट ये द भी नहीं लगेगा, ये सही है। इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी, डी इज द करेक्ट वन। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। योर आंसर इज 1। योर आंसर इज 1। द यहाँ नहीं होगा क्योंकि द अभी तो हमें यूनिफॉर्म के बारे में पता ही नहीं है, ये कोई सर्टेन तो है नहीं, इसलिए हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का ही प्रयोग किया जाएगा और वो एक वोवेल है, उसके पहले हमने आर्टिकल एन का प्रयोग किया। Now select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. The management is not be aware of. Be aware of यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ हो लगेगा अवेयर ऑफ। तो ये तो फ्रेज होता है, बी अवेयर ऑफ ये होता है फ्रेजल वर्ब, बी अवेयर ऑफ, बी अवेयर ऑफ। बी अवेयर ऑफ, तो ये यहां पर नहीं होगा, यहां होगा अवेयर ऑफ। ये वर्ब का मीनिंग देता है, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, या ये एडजेक्टिव का मीनिंग देता है, द मैनेजमेंट इज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। तो ये होना चाहिए आंसर नंबर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। Select the most appropriate option that can substitute the bracketed segment in the given sentence. The river flowing under the bridge. यहाँ हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉज फ्लो कुछ नहीं होगा, वॉज के बाद तो ये होता नहीं है, इसमें आईएनजी लगना चाहिए, नहीं लगा है, ये गलत है। फ्लोज सही है, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, ये सही है। इज फ्लो नहीं होता है, इज फ्लोड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। Select the most appropriate antonym of the given word. Sophisticated, sophisticated का opposite हमें लिखना है, opposite लिखना है। आप देखें ये तो इसका सिनोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, both are synonym to each other, ये दोनों सिनोनिम्स हो गए। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? एंटोनिम हो गया प्रिमिटिव, प्रिमिटिव ही तो। और टेक्निक और टेक्नोलॉजी से यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो प्रिमिटिव इसका एंटोनिम हो गया और आपका आंसर हो गया 1। Select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence. They have disposed all the old books. Disposed of होता है, disposed of, उन्होंने सारे पुरानी किताबों को बेच दिया है। Disposed of फ्रेज होता है और ये इस पे प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, ये आपको याद करना है। Dispose of, हम किसी चीज को जिसको हम नहीं चाहते हैं उसको क्या करते हैं? डिस्पोज ऑफ करते हैं, डिस्पोज ऑफ, dispose of. Now question number 19. Select the most appropriate meaning of the given word. Harangue. Harangue means होता है a lengthy and aggressive speech. Such a speech is known as when a person criticizes others by giving arrogant speeches. Such a speech is known as harangue.
ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर इट फॉर नेक्स्ट एग्जाम्स. A lengthy and aggressive speech is known as harangue. Select the most appropriate meaning of the given idiom. Back against the wall. इसका मीनिंग है in a difficult situation from where escape is difficult. In a difficult situation, ये गलत है. Be in relationship and easy situation नहीं हुआ. In a difficult situation from where escape is easy, ये भी गलत है. A difficult situation from where one finds hard to escape, that is known as back against the wall. Back against the wall. A difficult situation, removal from which is very difficult, is known as back against the wall. Now, a passage is given and you have to fill in the correct words. Redwing had read, क्या हो गया? केयरलेस नहीं हो गया, होलसम नहीं होगा, नेग्लिजेंटली नहीं होगा. दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर्स समवेयर, क्या हो जाएगा? आंसर 4. रेडविंग ने कहीं पढ़ा था, यही लिखूंगा ना, मतलब रेडविंग हैड रेड समवेयर, तो हो गया 4. दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर्स अर्नेस्ट हेमिंगवे हैड बीन आस्क्ड व्हाट वाज द बेस्ट फॉर ए नोवेलिस्ट. व्हाट वाज द बेस्ट, ये कुछ नहीं होगा, मेंटेनेंस नहीं होगा. नोवेलिस्ट के लिए सबसे बेस्ट ट्रेनिंग क्या है? 1. What was the best training for a novelist? He had said an unhappy childhood. Redwing had enjoyed a fine time growing up, but he wondered नहीं, well did नहीं, ये नहीं. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. बट ही वंडर्ड, उसने आश्चर्य किया. बट ही वंडर्ड if this whole was unfolding more like a novel and would be, इधर क्या हो गया 24 में? एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, एग्जैस्पिरेशन नहीं होगा, एक्सपायरेशन बोलते हैं पश्चाताप करने को. एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी हो. एक्सपेडिशन इज द करेक्ट. ये क्या कह रहा है कि यदि उसने रेडविंग हैड एंजॉयड अ फाइन टाइम ग्रोइंग अप, बट ही वंडर्ड इफ दिस होल एक्सपेडिशन वाज अनफोल्डिंग मोर लाइक ए नोवेल. उसने ये बताया कि ये जो उसका चाइल्डहुड की पूरी जर्नी है, या अब तक की जो पूरी जर्नी है, उसको अनफोल्ड किया जाए नोवेल के रूप में, लाइक ए नोवेल, एंड वुड बी ब्लूम्ड नहीं, ब्लेम्ड नहीं. आंसर 4 इज द करेक्ट वन. Would be based on one person, one character, the guy in charge him. Maybe you got a happy childhood and then an unhappy adulthood, and that is how novels work. तो उन्होंने बताया कि अगर पूरे एक्सपीडिशन को अनफोल्ड किया जाए तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा एक नोवेल की तरह एक हैप्पी चाइल्डहुड, अनहैप्पी एडल्टहुड के बारे में डिस्क्राइब करता है. तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर, 25 का ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट. Like a novel, and would be based on one person, one character, the guy in charge. Maybe you got a happy childhood and then an unhappy adulthood, and that is how novels work. That's why he told that the best training for a novelist is an
unhappy child. So friend, with this we have solved all the 25 questions held on 17th July in shift 4. Now your responsibility is to revise it and read those and remember those answers which are difficult and which is not known to you. Such a practice will make you efficient for next exams. Prepare well and get maximum marks. With this, I would like to close this video. Thank you very much.